ٹھگ کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں ایک چالاک اور مکار آدمی کی تصویر ابھرتی ہے جو جھانسا دے کر کچھ قیمتی سامان ٹھگ لیتا ہے۔ لیکن انڈیا میں 19ویں صدی میں جن ٹھگوں سے انگریزوں کا پالا پڑا وہ اتنے معمولی لوگ نہیں تھے۔ ٹھگوں کے بارے میں سب سے دلچسپ معلومات سن 1839 میں شائع ہونے والی کتاب کنفیشنز آف اے ٹھگ سے ملتی ہے۔ کتاب کے مصنف پولیس سپرنٹینڈنٹ فلپ میڈوز ٹیلر تھے۔ انہوں نے امیر علی خان جو کہ ٹھگوں کا سردار تھا اس کے ساتھ جیل میں ملاقات کی اور سب کچھ لکھتے گئے۔ ٹیلر کا کہنا ہے کہ امیر علی خان جیسے سینکڑوں سردار تھے جن کی سرپرستی میں ٹھگی کا دندہ چل رہا تھا۔ امیر علی خان سے جب ٹیلر نے پوچھا کہ تم نے کتنے لوگوں کو مارا تو اس نے کہا کہ ہم نے 719 لوگوں کو مارا، اگر آپ نہ پکڑتے تو ہم 1000 کو پار کر لیتے۔ ٹیلر کا کہنا تھا کہ ٹھگی کا عالم تھا کہ انگریزوں کو ان سے نمٹنے کے لیے ایک الگ محکمہ بنانا پڑا۔ وہی محکمہ بعد میں انٹیلیجنس بیورو یا IB کے نام سے جانا گیا۔ ٹیلر نے لکھا تھا کہ اود سے لے کر دکن تک ٹھگوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ انہیں پکڑنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت خفیہ طریقے سے کام کرتے تھے۔ انہیں عام لوگوں سے الگ کرنے کا کوئی طریقہ ہی سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ اپنا کام منصوبہ بندی اور بے حد چالاکی سے کرتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس بیورو کے مطابق پکڑے گئے جن 1059 لوگوں کا جرم پوری طرح ثابت نہیں ہو سکا تھا انہیں دور ملائیشیا کے پاس پیناک جزیرے پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ واردات نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ 1412 کو پھانسی دے دی گئی اور 87 کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹھگوں کے گروہ میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں۔ ٹھگی کی شروعات کیسی ہوئی یہ بتانا ناممکن ہے، لیکن اونچے رتبے والے شیخ سے لے کر خانہ بدوش مسلمان اور ہر ذات کے ہندو اس میں شامل تھے۔ چاہے ہندو ہو یا مسلمان، ٹھگ شب مہورت دیکھ کر ہی پوجا پاٹ کر کے اپنے کام پر نکلتے تھے جسے جتائی پر جانا کہا جاتا تھا۔ ٹھگی کا موسم عام طور پر درگا پوجا سے لے کر ہولی کے درمیان ہوتا تھا۔ تیز گرمی اور بارش میں رستوں پر مسافر بھی کم ملتے تھے اور کام کرنا مشکل ہوتا تھا۔ الگ الگ گروہ اپنے عقیدے کے حساب سے مندروں میں درشن کرنے جاتے تھے۔ زیادہ تر ٹھگ گروہ کالی ماتا کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر اگلے قدم سے پہلے شگن اور اپشگن کا وچار کرتے تھے۔ الو کے بولنے، کوے کے اڑنے، مور کے چلانے، لومڑی کے دکھائی دینے جیسی چیزیں وہ اپنے حساب سے مطلب نکالتے تھے۔ جتائی پر جانے سے 7 دن پہلے سے ساتہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس دوران ٹھگ ان کے خاندان کے ارکان کھانے پینے، سونے اٹھنے اور نہانے، حجامت بنانے وغیرہ کے معاملے میں کڑے اصولوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ساتہ کے دوران باہر کے لوگوں سے میل جول، کسی اور کو بلانا یا اس کے گھر جانا نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران کوئی دان نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کتے بلی جیسے جانوروں کو بھی کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ جتائی سے فارغ ہو کر لوٹنے کے بعد پوجا اور خیرات جیسے کام ہوتے تھے۔ اس طرح اٹپ کے اصولوں کا احترام ہوتا تھا۔ ٹھگوں کا اس بات پر یقین تھا کہ کام پر نکلنے سے پہلے پوری طرح تیار ہونا بہت ضروری تھا۔ گروہ کے کسی ٹھگ کے گھر میں کوئی پیدائش یا موت ہونے پر 10 دنوں کے لیے، پالتو جانوروں کی موت ہونے پر 3 دن کے لیے اور اسی طرح جنم ہونے پر 7 دن کے لیے یا تو پورا گروہ رک جاتا تھا یا وہ ٹھگ کام پر نہیں جاتا تھا جس کے خاندان میں جنم یا موت ہوئی ہو۔ مارے جانے والے لوگوں کی قبر جس کدال سے کھودی جاتی تھی اسے کسی کہا جاتا تھا۔ کسی سب سے زیادہ اہمیت کی چیز تھی۔ تحقیق کے بعد اردو اور ہندی میں لکھے گئے ناول کئی چاند تھے سر آسماں میں شمس الرحمن فاروقی نے کسی کی پوجا کا طریقہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک صاف ستھری جگہ پر تھالی میں پانی سے کدالی کو دھو دیا جاتا تھا، پھر پوجا کا طریقہ کار جاننے والے ٹھگ بیچ میں بیٹھتا تھا، باقی ٹھگ نہا دھو کر اس کے چاروں طرف بیٹھتے تھے۔ کدالی کو پہلے گڑ کے شربت، پھر دہی کے شربت اور آخر میں شراب سے نہلایا جاتا تھا۔ شربت اور آخر میں شراب سے نہلایا جانے کے بعد پھر تل اور پھول سے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ کدالی کی نوک پر سندور سے 7 ٹیکے لگائے جاتے تھے۔ اس کدالی سے ایک ناریل پھوڑا جاتا ہے۔ ناریل پھوٹنے پر سبھی ٹھگ چاہے ہندو ہو یا مسلمان جے دیوی مائی کی بولتے تھے۔ ٹھگوں کے درمیان ایسی کہانیاں مشہور تھی کہ ان پر کدال دیوی کی مہربانی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ٹھگوں کا یقین تھا کہ اگر وہ اصولوں کا احترام کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے تو دیوی ماں کی ان پر خاص مہربانی ہوگی۔ پہلا اصول یہ تھا کہ قتل میں ایک بوند بھی خون کا ضائع نہ ہو۔ دوسرا، کسی خاتون یا بچے کو کسی حال میں نہیں مارا جانا چاہیے۔ تیسرا، جب تک مال ملنے کی امید نہ ہو قتل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیلر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امیر علی خان کو اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ دوسرا، سبھی ٹھگوں کے بارے میں بھی میجر جنرل سلیمن کا کہنا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، جن کی نظر میں یہ مختلف پیشوں کی طرح کا ایک پیشہ تھا اور ان کے من میں ذرا بھی پچھتاوا یا دکھ نہیں تھا کہ کس طرح معصوم لوگوں کو مار کر وہ غائب کر دیتی ہیں۔
जताई पर निकलने वाले ठगों का ग्रुप 20 से 50 तक का होता था। वो आमतौर पर 3 दस्तों में चलते थे, एक पीछे, एक दरमियान में और एक आगे। इन तीनों दस्तों के दरमियान तालमेल के लिए हर टोली में 1-2 लोग थे जो एक कड़ी का काम करते थे। वो अपनी चाल तेज या धीमी करके आगे होते या साथ आ सकते थे। ज्यादातर ठग कई जबानें, गाना बजाना, भजन, नात, कवाली और हिंदू मुसलमान दोनों मज़ाहब के तौर तरीके अच्छी तरह जानते थे। वो ज़रूरत के मुताबिक यात्री, बाराती, मिज़ार के ज़ायरीन या नकली जनाजा निकाले वाले बन जाते। एक रास्ते में वो कई बार अपना रूप बदल लेते थे। वो भेस बदलने में भी खासे माहिर थे। वो बहुत इत्मीनान से काम करते थे, अपने शिकार को ज़रा भी भनक नहीं लगने देते थे। कई बार तो लोग ठगों के डर से ही असली ठगों को शरीफ समझकर इनकी गिरफ्त में आ जाते थे। ठगों के सरदार आमतौर पर पढ़े लिखे, इज्जतदार आदमी की तरह दिखाई देने वाले लोग होते थे और बाकी इसके तरह तरह के कारिंदे। फिलिप मेडोज टेलर की किताब कन्फेशंस ऑफ ए ठग में अमीर अली खान ने तफसील से बताया है कि वो कैसे वो बड़े सेठों और मालदार लोगों से ज़रूरत के हिसाब से कभी किसी नवाब की सिपह सालार की तरह मिलता था, कभी मौलवी की तरह, तो कभी यात्री का रूप धारकर पंडित की तरह। अमीर अली खान ने बताया कि ठगों के काम बटे हुए थे। सोटा ग्रोह के सबसे समझदार रुकन लोगों को बातों में फंसाने वाले लोग थे, जो शिकार की ताक में सराय के आसपास मंडलाते रहते थे। वो आने जाने वालों की टोह लेते थे, फिर इनके माल, असबाब और हैसियत का अंदाज़ा लगाकर इसे अपने चुंगल में फंसाते थे। अमीर अली खान के ग्रोह का सोटा गोपाल था, जो बहुत होशियारी से अपना काम करता था। शिकार की पहचान करने के बाद कुछ लोग इसके पीछे, कुछ आगे और कुछ सबसे आगे चलते। रास्ते भर धीरे धीरे करके ठगों की तादाद बढ़ती जाती, लेकिन वो ऐसा जाहिर करते जैसे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। अपने ही लोगों को जत्थे में शामिल होने रोकने का नाटक करते थे ताकि शक न हो। ये बहुत सब्र का काम था, हर बड़ाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। अमीर अली खान ने टेलर को बताया था कि कई बार तो हफ्ता 10 दिन तक सही मौके का इंतजार किया जाता था। अगर किसी गड़बड़ का अंदेशा होता तो वारदात टाल दी जाती। सबसे आगे चलने वाले दस्ते में बोल यानी कबर तैयार करने वाले लोग होते थे। उन्हें दरमियान वाले दस्ते में से कड़ी का काम करने वाला बता देता था कि कितने लोगों के लिए कबर बनानी है। पीछे वाला दस्ता नजर रखता था कि कोई खतरा इनकी तरफ तो नहीं आ रहा। आखिर में तीनों बहुत पास पास आ जाते, लेकिन इसकी खबर शिकार को नहीं होती थी। कई दिन गुजर जाने के बाद जब शिकार चौकन्ना नहीं होता था और जगह माकूल होती थी, तब गिरोह को कार्रवाई शुरू करने के लिए पहले से तयशुदा एक इशारा दिया जाता था, जो एक फर्जी नाम होता था। अमीर अली खान ने अपने बयान में बताया कि इसके लिए सर मस्त खान, लदन खान, सर बुलंद खान, हरीराम या जय गोपाल जैसे नामों का इस्तेमाल होता था। ये पहला इशारा था कि अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। इसके बाद ठगों में सबसे इज्जतदार लोगों की बारी आती थी, जिन्हें भत्तूट या भत्तूटी कहा जाता था। इनका काम बिना खून बहाए रुमाल में सिक्का बांधकर बनाई गई घाट से शिकार का गला घोंटना होता था। हर एक शिकार के पीछे एक भतूट होता था। पूरा काम एक साथ 2-3 मिनट में होता था। इसके लिए मुस्तादिर ठग अपने सरगना की झरनी का इंतजार करते थे। झरनी का मतलब आखिरी इशारा होता था कि अपने आगे खड़े या बैठे शिकार के गले में फंदा डालकर खींचा जाए। अमीर अली खान ने एक झटके में 12 से 15 तंदुरुस्त मर्दों का काम तमाम करने का अमल बेहद आसानी से किया है। इसने टेलर को बताया कि इशारा या झरनी आमतौर पर तंबाकू खा लो, हुक्का पिलाओ या गाना सुनाओ जैसा छोटा मोटा वाकया होता था। फिर पलक झपकते ही भतूट शिकार के गले में फंदा डाल देते थे और 2-3 मिनट बाद आदमी तड़प कर ठंडा हो जाता था। इसके बाद लाशों से कीमती सामान हटाकर उन्हें पहले से खोदी हुई कब्रों में एक के सर की तरफ दूसरे का पैर वाली तरकीब से डाल दिया जाता था, ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा लाशें आ सकें। इसके बाद जगह को हमवार करके इसके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ जो पहले से तैयार रखी होती थीं लगा दी जाती थीं, ताकि जंगली जानवर कब्र को खोदने की कोशिश ना करे। इस तरह पूरा काफिला हमेशा के लिए गायब हो जाता था और ठग भी। अमीर अली खान ने अपने बयान में बताया कि आज के उत्तर प्रदेश के ज़िला जालून में वो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। ज़्यादातर लोग इसे मुसलमान ज़मींदार या सौदागर समझते थे। साल के 7-8 महीने वो घर पर एक इज़्ज़तदार मुसलमान की तरह रहता और सही वक्त पर पूजा करने 4 महीने के लिए जताई पर निकल जाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि कौन ठग है, लेकिन एक पूरा नेटवर्क था। अमीर अली खान के मुताबिक कई छोटे बड़े ज़मींदार और नवाब ठगों से नजराना वसूल करते थे और मुसीबत के वक्त उन्हें पनाह भी देते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को इसकी भनक नहीं लगने देते थे। इस तरह कई ज़मींदारों ने ठगों को अपनी गैर ज़री ज़मीन इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी, जिनमें वो इज्तिमाई कब्रें खोदते थे। इसके बदले में उन्हें ठगों से हिस्सा मिलता था। इस तरह हर जगह ठगों के मखबर और इनके मददगार मौजूद थे। मदद करने वाले इन लोगों को तो कई बार पता भी नहीं होता था कि किसका साथ दे रहे हैं।
कौन ठग था और कौन नहीं, अंग्रेज इस पहेली से लगातार नंबरदाज मार रहे थे। फिलिप मेडोज टेलर ने अपनी किताब के आगाज में 1825 से 26 का एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। वो लिखते हैं कि मेरी तैनाती हिंगोली में थी। वहाँ हरि सिंह नाम का एक व्यापारी था। हम इससे लेन देन करते थे। एक दिन इसने मुंबई से कुछ कपड़ा लाने का परमिट मांगा, जो इसे दे दिया गया। वो कपड़ा ले आया और इसने मिलिट्री कैंटोनमेंट में कपड़ा बेचा। दरअसल वो कपड़ा किसी और व्यापारी का था। हरि सिंह ने इसे और इसके कारिंदों को मारकर कपड़ा लूट लिया था। हरि सिंह दरअसल ठग था। अंग्रेजों को हरि सिंह के ठग होने का पता कई साल बाद पता चला, जब इसने पकड़े जाने पर अंग्रेजों का मजाक उड़ाया और बताया कि कैसे कपड़ों का परमिट लेकर इसने गोरे साहब को उल्लू बनाया था। सन 1835 के बाद के सालों में जब ठग पकड़े जाने लगे और इनके पोल खुलने लगे तो पता चला कि ठगी कितने बड़े पैमाने पर जारी थी। टेलर ने लिखा है कि मैं मंसूर में सुपरिटेंडेंट था जब हमने वादा माफ सरकारी गवाह बने एक ठग की निशानदेही पर जमीन खोदना शुरू की तो इतनी इज्तिमाई कब्रें मिली कि हमने परेशान होकर खुदाई करना ही बंद कर दी। शमसुर रहमान फारूकी के नावल कई चांद थे सरे आसमां में 1843 से 44 में रामपुर के नवाब के खास दरबारी मिर्ज़ा तुराब अली के ठगों के हाथों मारे जाने का किस्सा मिलता है। इसमें बताया गया है कि रियासत बाहर के शहर सोमपुर में मेले से हाथी घोड़े खरीदने के लिए जाने वाले नवाब के सुपह सालार और इनके 6 साथियों को ठगों ने मार डाला। मिर्ज़ा तुराब अली और इनके साथियों के कत्ल के बारे में जो तफसील मिली, इसके मुताबिक ठगों ने एक मुसलमान राहगीर की नमाज जनाजा पढ़ाने के बहाने असलहे से लीस तुराब अली और इसके साथियों को घोड़े से नीचे उतारा था। जब वो नमाज पढ़ रहे थे तभी तंबाकू खिलाओ की आवाज़ आई और 7 लोग रुमाल से गला घोंट कर मार डाले गए। जब तुराब अली रामपुर लौट कर नहीं आए तो नवाब को शक हुआ कि कहीं ठगों के शिकार तो नहीं बन गए। उन्होंने अफ्रीका से गुलाम बनाकर गुजरात के साहिल पर लाए गए अफ्रीकियों की कहानियां सुन रखी थीं, जिन्हें शेदी कहा जाता था। उन्होंने इस काम के लिए शेदी इकराम और शेदी मुनीम की मदद ली। शेदियों के बारे में फारूकी लिखते हैं कि उन्हें नस्ल के लिहाज से शेदी और काम लिहाज से खोजिया कहा जाता था। इनके हुनर की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्हें गुजरात से ऊद तक बुलाया जाने लगा था। कदमों के निशान, लापता लोगों का पता लगाना और मफरूल लोगों के सुराग ढूंढने में वो माहिर थे। आपस में वो सवाहली में जबकि दूसरे लोगों से हिंदी में बात करते थे। रामपुर के नवाब ने अपने वफादार मिर्ज़ा तुराब अली और इनके साथियों का पता लगाने के लिए शेदियों को भेजा। शेदी सारे रास्ते हर चीज़ की बारीक पड़ताल करते चलते रहे। शमसुर रहमान फारूकी लिखते हैं कि वो एक बड़े चौकोर मैदान में पहुंचे जहां उन्होंने लकड़ी से लकीरें खींचकर बड़े बड़े चौकोर खाने बनाए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके इन खानों को सूंघना और इनकी मिट्टी को कुरीदना शुरू किया। वो किसी खोजी कुत्ते से भी ज्यादा तवज्जो से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक जगह पहुंचकर आवाज़ लगाई, जमादार जी वो मारा, यहाँ खुदाई कराओ। जब वहाँ खुदाई की गई तो मिर्ज़ा तुराब अली समेत नवाब के सभी कारिंदों की लाशें मिल गई। शेदी आज भी गुजरात रियासत के कुछ इलाकों में बसे हुए हैं, लेकिन ठगों का सफाया हो चुका है। ठग अमीर अली खान के बारे में एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसे इस ठग ने बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह पाला था, जिसने इसके बाप को एक वारदात के दौरान मार डाला था। आमिर को गोद लेने वाले ठग बाप से ठगी का सबक मिला था। इसी वजह से ठगी को एक नेक काम समझता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।